In a concerning incident during his Padyatra in South Delhi's Greater Kailash, Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal was attacked when a man splashed a liquid on him. This incident took place while Kejriwal was engaging with people from behind a security cordon. The attacker was quickly caught by security personnel and taken to the local police station for questioning. The individual responsible for the attack has been identified as Ashok Jha, who is a bus marshal from Kanpur depot. Authorities are currently investigating the motive behind this unusual outburst. Post the attack, Arvind Kejriwal took to his social media platform X handle to question Home Minister Amit Shah about the effectiveness of his actions against crime in Delhi. He raised points regarding whether stopping him would have any impact on crime rates, including the occurrence of open shootouts in the city. In fact, he also inquired if the safety of women and traders in Delhi would improve as a result of such actions. In the aftermath, the Aam Aadmi Party has directed sharp criticism toward the central government, asserting that the BJP is culpable for orchestrating a plan to burn Kejriwal alive and that the liquid thrown on him is actually spirit. But the police says it is water. स्पिरिट तो फेंक पाए मगर आग नहीं लगा पाए अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं दिल्ली वालों के बीच, पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। Earlier, Arvind Kejriwal himself voiced concerns about a complete breakdown of law and order under the BJP's administration. Aam Aadmi Party is pointing fingers at the centre. They highlight that the Delhi police operates under the jurisdiction of the Union Home Ministry. In response, the police issued a statement indicating that there was adequate security in place for the Padyatra, which was organised without proper permission. The BJP, while condemning the attack on Kejriwal, suggested that it reflects a broader public discontent with Aam Aadmi Party, claiming that the party is now facing the repercussions of its unfulfilled promises. In fact, the Congress too claims it is the anger of the people that is on display. राजनीतिक नौटंकी है जो केजरीवाल ने खुद करवाई है। ये बात मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे और जो जानकारी आ रही है वो पानी है। वहीं का एक इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है और अरविंद केजरीवाल की ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है कि जमीन खिसक चुकी है, कोई चाल काम नहीं आ रही है, तो ये घिसी पिटी चालें निपटाएंगे। जो भी आदमी पकड़ा गया है उस पर पुलिस कार्रवाई करे। जांच में यही सामने आएगा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी इस तरह की ये टुच्चे कार्य हम लोग न पसंद करते हैं, ना किसी के लिए करते हैं, ना करने की सिफारिश करते हैं। हम इस कार्य की निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी बात, बड़ा शंका की बात है कि अचानक क्यों उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही अरविंद केजरीवाल जी ही इस तरह की साजिश करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली की नजरों में बहुत नीचे गिर चुके हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल जैसे अपराधी को सजा देना है तो वोट से दीजिए। अरविंद केजरीवाल की रैली में भी कुछ उपद्रवियों ने उन पर एक प्रकार से तरल पदार्थ फेंका या उनकी जान लेने की कोशिश की या उनको अपमानित करने की कोशिश की। अगर राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और नेता हैं, वो जनता के बीच में आते जाते हैं, जनता की सुख सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो लोग सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत बड़ा कानून व्यवस्था का फेलियर है। अब आप सोच लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है, तो आम आदमी की क्या आप सुरक्षा करेंगे? मेरा ख्याल है कि जनता नाराज है। इनके झूठ बहुत बोलते हैं। दो आदमी इस देश में बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं। एक मोदी जी हैं, एक अरविंद जी हैं।
बहुत झूठ बोलते हैं। तो उनके झूठ बोलने से वायदा तो पूरा किया नहीं है। दिल्ली कभी स्वच्छ हुआ करती थी, साफ सुथरी हुआ करती थी। किस तरह से पुलों का जाल बनाया था हमारी सरकार ने, सड़कें बनाई थी, स्वच्छ किया था, एशियाड गेम भी हुआ था। उसके बाद में कोई ऐसा काम बड़ा किया हो तो बता दिया जा सकता है। Now, it is pertinent to note that this incident comes at a politically sensitive time with Delhi Assembly elections on the horizon in February.